Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. My dear students, today we are going to continue the part 2 of A Triumph of Surgery written by James Herriot. So before we go ahead, let's see what did we study in the previous video. My dear students, this is a story about Tricky, a dog who is the pet of a rich lady named Mrs. Pumphrey. She loves her dog very much and is unable to refuse him anything he wants. Tricky is fond of eating creams, chocolates, and many more. One day, when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk, the narrator sees them and stops to talk. While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a blotted sausage. Soon Tricky got unwell and Mrs. Pumphrey has to call Mr. Herriot, the narrator of our lesson, for help. She does not want to send him away, but the only way suggested by Mr. Herriot is to get him hospitalized for 15 days. So let's see now what happened further. Here we go. At the surgery, the household dogs surged round me. Now, after bringing Tricky to his clinic, surgery means here a place where Mr. Herriot treats the animal, all the household dogs surged. Surge means to move suddenly forward. All his other animals, dogs, they just came around him. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. So what did Tricky do? Tricky looked down when he saw all these noisy pack. Noisy pack means here the group of dogs. So when he saw the other dogs with his dull eyes, because he did not have any energy, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी उसके पास. When put down, तो जब मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक कारपेट रखा, कारपेट रखा, उसके ऊपर वो मोशनलेस ऑन दी कारपेट, वो मोशनलेस बिल्कुल हिला डुला नहीं और उस कारपेट पर जाकर बैठ गया. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting objects and ignored him. So जो बाकी सब डॉग्स थे, द अदर डॉग्स, आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स आपको पता ही है कि डॉग्स क्या करते हैं, वो स्मेल करते हैं, वो स्निफ करते हैं. दे स्निफ्ड around him and for the few seconds and decided that he is an uninteresting object and ignored him. और उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने अनदेखा कर दिया उसे. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक अच्छा कोजी कॉम्फी बेड बनाया और वो एक लूज बॉक्स में था जहाँ पर दूसरे डॉग्स होते थे, उन्हीं के बाजू में उसने उनका बेड बनाया. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया. किसे? ट्रिकी को. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. सो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो some interest in the surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So what was the reaction? On the second day he started to show some interest in the surrounding. थोड़ा वो एक्टिव और उसके अंदर वो एक्टिवनेस दिखने लगा 2 दिन के बाद. और तीसरे दिन तो वो थोड़ा विम्पर करने लगा. अब विम्पर क्या होता है? टू मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड, एक हल्की सी आवाज़ निकालना, और उसकी वो आवाज़ उसके मुंह से निकलने लगी. जब उसने दूसरे डॉग्स को यार्ड में देखा तो तीसरे दिन उसके अंदर एक चेंज देखने को मिला. तो ये देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी खुशी हुई थी कि अब ये जो मोशनलेस कारपेट पर बैठा था, अब इसके एटलीस्ट कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, उसके कुछ आवाज़ निकल रही हैं. नेक्स्ट, व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जॉ द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. जैसे ही यहाँ पर जेम्स हैरियट दरवाज़ा खोलते हैं, ट्रिकी ट्रोटेड मीन्स रैन एट द मॉडरेट पेस, और तुरंत भाग कर आना. आउट एंड ही केम आउट immediately and engulfed means was surrounded, covered completely by whom?
बाय जॉ। जॉ एक डॉग का नाम है जो ग्रे हाउंड ब्रीड से है, एंड ऑल हिज फ्रेंड्स मीन्स उसके सारे दूसरे एनिमल्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको थॉरोली इंस्पेक्ट करते हैं वो किसको, ट्रिकी को। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और जो सारे डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ भागते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब वो इतना मोटा था कि वो भाग नहीं पा रहा था उनके साथ, वो रोल करता जा रहा था, रोल हो रहा था, ओके, क्योंकि उसका जो बॉडी का फैट था वो कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए वो जब भागने जाता था तो गिर जाता था, रोल हो जाता था, उसकी बॉडी पूरी रोल हो जाती थी क्योंकि उसके सरप्लस फैट की वजह से। लेकिन वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है और सभी के सभी डॉग्स गार्डन की तरफ भागते हैं। अब यहाँ पर ट्रिकी के अंदर एक चेंज देखने को मिल रहा है, ओके, ऑथर हमारे जो राइटर हैं वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर। देखते हैं आगे। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, अब जब डॉग्स का फीडिंग टाइप था, जब उनको खाना खिला रहे थे, तब वहाँ पर हमारे राइटर भी प्रेजेंट थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन, एक डॉग का नाम है, स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउल्स। स्लॉप्ड, स्लॉप्ड मीन्स स्पील्ड ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, खाने को बाहर गिराना। अब कुछ डॉग्स होते हैं वो इतने ज़ोर से लिकिंग करते हैं या इतने स्पीड से वो खाना खाते हैं कि आधा खाना जो है वो बाउल से बाहर गिरता है। तो ट्रिस्टन नाम का जो डॉग था, जब वो खाना खा रहा था तो आधे से ज़्यादा खाना तो बाहर गिर रहा था। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, क्यों, क्योंकि एक रश होता था उनके अंदर, किसके लिए, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, खाने के अंदर एक कंपटीशन होता था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others he was liable to have some competitions for the last part of his meal। अब यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई डॉग धीरे धीरे खाना खाता है तो बाकी सारे डॉग्स जो स्पीड में खाना खा रहे हैं वो उसका खाना खाने के लिए सब में कंपटीशन लग जाएगा। इसीलिए सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो सब स्पीड में खाना खा रहे हैं ताकि उनके प्लेट्स में कोई खाना ना बचे। अगर बच गया तो फिर बाकी सब डॉग्स वहाँ पर आ जाएंगे उसका खाना खाने के लिए। तो वो एक कंपटीशन उनमें लगा हुआ है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। तो वो देखता था कि अगर किसी में कुछ खाना बचा हो, ओके, और वो बाउल्स को लिक करता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम and I was pleased to see him jostling his way towards it। So next day the writer realized and he kept the one extra bowl for Tricky। तो उसे बहुत खुशी हुई ट्रिकी को देखकर, that jostling his way, jostling his way means जो धक्का मुक्की वो कर रहा था अपने खाने के लिए वो उसे बहुत अच्छा लगा, मीन्स उसकी कुछ एक्सरसाइज हो रही थी, अब वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा था। From then on, his progress was rapid। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages। अब उस दिन से उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही फास्ट हो गया, उसके अंदर बहुत जल्दी रिकवरी आने लगी, और इसके लिए डॉक्टर हैरियट ने कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। नो एनी काइंड ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन वो क्या करता था, बस बाकी सब दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहता था, ओके, दूसरे डॉग्स के साथ वो मीन्स घूमता रहता था, फिरता रहता था। एंड जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। व्हाट इज स्क्रिमेजेस मीन्स रफ एंड द कन्फ्यूज स्ट्रगल, और उनका जो ओके मीन्स उनके अंदर जो मस्ती रहती थी उसी में वो इंजॉय करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बींग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब उसने वो जॉय डिस्कवर किया, कौन सा जॉय, कि बॉल्ड ओवर, कोई उसे धक्का मार देता था, ट्रैम्प्ड ऑन, उसके पैर पर कोई पैर रख देता था, स्क्वेस्ड, उसे कोई दबा देता था, और ये सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब यहाँ पर गैंग किसके बोला है, ओके, डॉग्स की गैंग। अब उसको सारे डॉग्स ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, सभी डॉग्स के साथ वो घुल मिल गया है।
एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शेगी क्रू। जैसे शेगी, शेगी यहाँ पर दिया है कि हैविंग अ लॉन्ग थिक हेयर, क्रू मीन्स ग्रुप। तो जैसे ये बहुत ही ओके मीन्स शेगी क्रू है जिसके बड़े बड़े ओके मीन्स फर होते हैं, वैसे इस पूरे क्रू में ये एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है। तो वैसा ओके उस गैंग में उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड अ सच टाइम इन हिज लाइफ। और अपने मील के लिए भी वो टाइगर के जैसे फाइट करता था। शाम को रैट्स पकड़ भी मीन्स hen हाउस में वो रैट्स को भी पकड़ता था, और ऐसा टाइम उसने लाइफ में कभी भी नहीं ओके मीन्स देखा था। सो ही इंजॉयड लाइक एनीथिंग, सो ही नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ। ऐसी मस्ती उसने कभी भी नहीं की थी। All while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Now, here at home, Mrs. Pumphrey was hovered means moved anxiously, and she was thinking about Tricky. And for that, she called number of times for the latest news. Bulletin means news, that what is Tricky or how is the Tricky right now. Okay, how is he feeling? I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to weather. So he was not paying attention more about the questions like कि उसका कुशन टर्न किया है कि नहीं, उसने कोट वेदर के अनुसार पहना है कि नहीं, ओके अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो ये सब क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। अब ट्रिकी उसे अच्छा फील हो रहा है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, कन्वेल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस। अब वो अच्छा फील करने लगा है, अब चिंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब वो ठीक होने लगा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग seemed to be something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने बताया कि ट्रिकी इज कन्वेल्सिंग, तो ये जो वर्ड सुनकर के उस ट्रिकी के अंदर रिकवरी आ रही है, वो ठीक हो रहा है, तो ये वर्ड सुनकर ही मिसेस पम्फ्रे को कुछ हो जाता है। वो सोचती है कि जैसे ही ट्रिकी ठीक होगा तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, वो वीक होने लगेगा, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, 2 डजन अंडे वो हॉस्पिटल में भेजती हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं डॉक्टर हैरियट, ये थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, फॉर द हैप्पी पीरियड he and his partners, both of them started eating the eggs which were sent by Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey ने eggs जो हैं वो ऑफ कोर्स ट्रिकी के लिए भेजे थे, लेकिन ट्रिकी ऑलरेडी यही चीज़ खाना खा खा कर तो वो इतना मोटा हो गया था, इसलिए डॉक्टर को पता था कि ये उसे अभी देना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को भी मना नहीं किया, वो अंडे ले लिए और वो खुद खाने लगे अपने पार्टनर्स के साथ। सबको वो 2-2 बांटे थे। लेकिन जब when the bottles of wine began to arrive, लेकिन उन्होंने फिर बाद में वाइन भी भेजना शुरू कर दिया, और that was the situation but to dawn on the household. To dawn on means were understood by the household. household यहाँ पर हॉस्पिटल, ओके वेटरनरी हॉस्पिटल। तो तब उन्हें सिचुएशन का थोड़ा पता चला, तब उनको पता चला कि ये थोड़ा मीन्स मिसेस पम्फ्रे का कुछ ज़्यादा ही ओके लाड़ प्यार है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर भी वो सारे मिल बांट कर खाने लगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब क्यों भेजने लगे, ताकि ट्रिकी के ब्लड में ट्रिकी का ब्लड थोड़ा एनरिच हो, ओके अच्छा हो, इसलिए वो भेजने लगे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अब उनका जो लंच टाइम था, किसका, डॉक्टर हैरियट और उनके जो जितने साथीदार थे, जितने पार्टनर्स थे, उन सभी के लिए लंच एक फीस्ट के जैसा हो गया। अब वो लंच को बहुत इंजॉय करने लगे। लंच के पहले भी 2 glasses ऑफ वाइन के पीने लगे, और लंच लेते समय भी, मील लेते समय भी वो सेवरल ग्लासेस वाइन के लेने लगे। तो अब उनका जो टाइम था बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, क्योंकि वो जो फूड मिसेस पम्फ्रे के द्वारा भेजा जा रहा था, उस फूड को वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे।
We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. To put a final age means to improve, to sharpen. Now, Mrs. Pumphrey sent the eggs, then wine, then now brandy. My goodness, ये डॉग है या पिछले जन्म का कोई प्यासा। अब जब ब्रांडी आया तब for a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. फिर बाद में मिसिस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजा और कुछ दिनों तक, कुछ रात तक द स्पिरिट्स वॉज रोल्ड अराउंड एंड इनहेल्ड। उन्होंने स्मेल लिया, जो उनके साथ थे, जो पार्टनर, दे इनहेल्ड एंड रिस्पेक्टफुली ड्रंक। ओके, दे रिस्पेक्टफुली ड्रंक। सो मीन्स दे ऑल स्टार्टेड इन्जॉइंग। अब ये सब चीज़ें वो ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन जो हमारे राइटर हैं कि मिस्टर जेम्स हैरियट हैं, वो और उनके पार्टनर्स, वो ये सारी चीज़ें वो इन्जॉय करते थे। They were the days of content, deep content. They were the days of deep content means satisfaction. Starting well with extra eggs. दिन की शुरुआत एग से होती थी. The morning improved and sustained by the midday wine. फिर दोपहर में वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड एंड द फायर विद द ब्रांडी. और रात को ब्रांडी. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इनका तो मीन्स बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट था, इन्जॉयमेंट था, बिकॉज जो भी चीज़ें ट्रिकी के लिए आती थी वो सारी चीज़ें ये लोग इन्जॉय करते थे, खाते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. To keep Tricky on means to keep the Tricky in the surgery. Okay, उसको हमेशा के लिए अपने पास ही रखना, ऐसी फीलिंग राइटर को आ रही थी, okay, डॉक्टर को आ रही थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ये जो हर दिन उनका एक लग्जरियस जा रहा था, तो उसको वो टेम्पटिंग फीलिंग आ रही थी कि अगर ये यहीं रहता तो अच्छा रहता. लेकिन वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे जो है, शी वॉज रियली वेरी वरीड अबाउट ट्रिकीज़ हेल्थ एंड शी वॉज ऑल्सो सफरिंग अ लॉट. सो 15 दिन के बाद उन्हें वो फील होता है, एंड ही इज़ कंपेल्ड टू फोन मिसेस पम्फ्रे एंड आस्क्ड हर दैट योर डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड यू कैन कम टू कलेक्ट हिम. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और थोड़े ही मिनटों में एक 30 फीट की चमकती ब्लैक कलर की कार सर्जरी हॉस्पिटल के सामने आ जाती है. द शॉपर मीन्स ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और शॉपर ने दरवाज़ा खोला कार का, and I could see that Mrs. Pumphrey in the car. और मैं कार में मिसेस पम्फ्रे को मैंने नोटिस किया. Her hands were tightly clasped in front of her, lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Now, her hands were tightly clasped. अब वो थोड़ी नर्वस दिख रही थी. In front of her, her lips trembled. कि उसके जो लिप्स थे वो भी ट्रिम्बल कर रहे थे. और उसने मुझसे कहा, ओ मिस्टर हैरियट, टेल मी द ट्रूथ, इज़ ट्रिकी रियली बेटर? क्या उसे सचमुच अभी अच्छा लग रहा है? वो पहले जैसा हो गया? क्या उसे बिल्कुल ठीक लग रहा है? येस, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फेच हिम. यस, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन. ओके, अब वो बिल्कुल ठीक है, पूरी तरीके से वो रिकवर हो चुका है. आप प्लीज़ कार से ना उतरे, मैं उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड द लॉन एंड द देयर एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. सो ही वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. ओके, वो घर से होकर गार्डन की तरफ गए. वहाँ पर अ मास ऑफ डॉग्स मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स, वर हर्टलिंग, मूविंग राउंड द लॉन एंड इन दियर मिड्स. और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग करते हुए, टेल को वेव करते हुए एक लिटिल गोल्डन फिगर. और वो कौन थे? ट्रिकी. ओके, और वहाँ पर था ट्रिकी. मीन्स ट्रिकी बाकी के सारे डॉग्स थे उनके साथ वो खेल रहा था.
इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड। 2 हफ्तों में, इन 15 दिनों में बहुत ही बड़ा चेंज उसके अंदर आया था। उसने बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्म किया था। लीद, लीद मीन्स बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया था। जब वो आया था हॉस्पिटल में बहुत मोटा था, उसकी बॉडी भी पूरा रोल कर रहा था, वो भाग नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया है। हार्ड मसल्ड एनिमल, एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, बहुत ही अच्छा अपने आप को वो संभाल पा रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड्स, अच्छी तरह से अपनी बॉडी को वो स्ट्रेच कर पा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट जब वो स्ट्रेच कर रहा था उसकी चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रही थी। इतना अच्छा उसके अंदर चेंज देखने को मिल रहा था। मीन्स बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर दिखाई दे रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसको कैरी किया फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ दिस। और शॉपर, जब मैं पहुंचा कार के पास तो शॉपर तभी भी दरवाजा पकड़कर खड़ा था। इस इमेज में आप देख सकते हो। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। और जैसे ही ट्रिकी ने अपने ऑनर को देखा वो तुरंत उसने जंप लिया, ओके, मेरे आर्म्स में से वो फ्रॉम माई आर्म्स एंड ट्रेमेंडस लीप, ओके, और बड़ा सा जंप लिया एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और तुरंत जाकर वो मिसेस पम्फ्रे के पास बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई, ओके, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वैम्ड ओवर हर। और मीन जैसे ही उसने घेर लिया तो उसने अपने आप को डिफेंड किया, तुरंत वो भी तैयार हो गई, ओके, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। स्वैम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो तुरंत लीक करने लगा और फेस, ओके, मीन्स बार्किंग करने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और कुछ भी उसमें से इस्तेमाल नहीं हुआ था। जितने भी टॉयज़, कुशंस और ये सारी जो बाउल्स सब भेजे थे, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, और वो सारे वो भी दे रहा था, उनको रिटर्न कर रहा था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। और जैसे ही कार आगे मुड़ते मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर शोन इन हर आइज एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी ट्रिकी को देखकर कि वो अब पहले जैसा हो गया है, ओके, मीन्स अब उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, हिज हेल्थ इज़ फाइन अब, ओके, उनके अंदर वो बिल्कुल वरी नहीं थी, वो जो बहुत चिंता कर रही थी अब वो सब मिट गई है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो इसलिए आंसू उनकी आंखों से निकल गया, उनके लिप्स भी ट्रिम्बल हो रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ये सचमुच एक विक्ट्री ही है जिस तरीके से आपने ट्रिकी के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया है, ओके, जिस तरीके से आपने ट्रिकी को क्योर किया है, उसको पहले जैसा बनाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।